Our today topic is verb. What is verb? Words which say something are called verbs. Words which say something. Words जो हमें कुछ बताते हैं are called verbs. और all says words are verbs. For example, the man killed a snake. The work is done by a man. लेकिन उसने वर्क क्या किया? क्रिया क्या की? Killed. So that is called verb. If you will see, we all types of verb here. First, auxiliary verbs, जिसे हम helping verb भी बोलते हैं, finite verb and non-finite verb. ठीक? Helping verb means auxiliary verb. Auxiliary verb has also two parts, which we will discuss now. Finite verb, जिसे हम main verb भी कहते हैं, जो tense के according हम change करते हैं, that is called finite verb. And the non-finite verb, जिसके ऊपर subject का कोई भी effect नहीं पड़ता. Done? So before going to discuss about the verb, we need to know subject and predicate, clause, phrase. ये सब चीजें क्या होती हैं? Because it is very easy for you to understand the verb deeply. अगर आप verbs को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, तो subject agreement with verb we have done, but now we will do subject and predicate. Predicates क्या होते हैं? ठीक है, और हम क्या करेंगे आज clause and the phrase. So today topic is verb. But verb को समझने से पहले कुछ important concept हमें समझने पड़ेंगे. Then we can easily understand कि where we use the verb. This topic is subject and predicate. What is the subject and the predicate? क्या होता है subject and the predicate? As you know, sentence has two parts. आपको पता होना चाहिए कि subject sentence के दो parts होते हैं. One is subject and the second one is a predicate. But how we will know कि कौन सा subject है और कौन सा predicate? Okay? Meena goes to school. Subject and what is the predicate? Meena goes to school. Meena goes to school. We say something about Meena. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मीना के बारे में. ठीक है कि मीना. और अगर आप ध्यान से पढ़ो, मीना goes to school. और what we say about her. और हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं? ठीक है. But here our target is only find the subject. कि subject क्या होता है? We say something about मीना. हम मीना के बारे में कुछ बात कर रहे हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं that is called subject. उसे बोलते हैं subject. In a sentence, the person or thing. अगर हम किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, we talk about is called subject. So that is called subject. Because we are going to make a sentence. We are going to make a sentence. लेकिन sentence में भी क्या क्या चाहिए होता है? Subject plus verb plus object.
जो वर्ब का रोल है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उसको समझने से पहले यू नीड टू नो अबाउट द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। डन। सो नेक्स्ट पार्ट इज प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? अभी मैंने आपको बोला था व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। डन। In a sentence, what is said about the subject? Subject के बारे में जो भी बात की जा रही है, how he is very intelligent, है ना? जो भी बात हम subject के बारे में बात करें, जैसे मीना goes to school, ठीक है? मैंने मीना के बारे में क्या बात की कि मीना स्कूल जाती है, लेकिन सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, टू ग्रुप होते हैं, टू पार्ट्स। वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज प्रेडिकेट। जो सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। सो आफ्टर रिमेनिंग द सब्जेक्ट, जब हमें सब्जेक्ट मिल जाता है उसके बाद जो भी बचता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिमेनिंग, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट। दैट इज प्रेडिकेट। That is subject, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। We are talking in a subject, उसी हम subject कहते हैं। So that is subject and the predicate. As you know, we are discussing about the verb, but before going to discuss about the verb, we need to know some points of the sentences. Sentences क्या होते हैं, sentences के कितने parts होते हैं। तो नेक्स्ट इज द फ्रेज एंड द क्लोज। व्हाट आर द फ्रेज? क्या होते हैं ये फ्रेज? वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग। फ्रेज, ही लेफ्ट अस इन द मॉर्निंग, ही लेफ्ट अस इन द मॉर्निंग। दिस इज द एग्जांपल, ठीक है, ही लेफ्ट अस इन द मॉर्निंग। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंस इन द मॉर्निंग। In the morning क्या है? A group of words has a meaning. इसका meaning तो है in the morning means सुबह, सुबह में, ठीक है। अब इसने क्या कहा? Has a meaning और make sense, और आपको समझ भी आता है। He left us in the morning, उसने हमें सुबह छोड़ दिया, यही कह रहा है ना ये। But does not make complete sense। अगर मैं ये हटा दूँ in the morning तो इसका कोई meaning ही नहीं बनता। हमें नहीं पता इन दी मॉर्निंग कब, इस समय क्या है, कुछ नहीं पता चलता, ठीक है, बिकॉज इट हैज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट। अगर आप देखो तो इसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं है और ना ही कोई प्रेडिकेट है और ना ही कोई वर्ब है। सो दैट इज कॉल्ड फ्रेज। इसलिए इसे बोलते हैं, ये क्या है, डिपेंड है अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, ठीक है। हैज अ मीनिंग और मेक सेंस बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। बट ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, पूरी तरह हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इफ यू विल रिमूव दिस पार्ट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे वांट टू से। अगर मैं इस पार्ट को रिमूव कर दूं, हटा दूं, क्लीन कर दूं, तो आप समझ लोगे कि क्या इन द मॉर्निंग। तो यहाँ कहने का मतलब है फ्रेज क्या होता है जिसमें क्या होता है आपको मीनिंग तो समझ आ रहा है बट इसका ना ही सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अपना ना ही सब्जेक्ट होता है और ऐसे भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई मीनिंग होता है, सिर्फ समझ आ जाता है हमें, लेकिन ये अपने आप में आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इफ यू वांट टू यूज तो वी नीड अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। देन हैज अ मीनिंग और मेक सेंस बट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। सो इट इज नॉट अ सेंटेंस, इसलिए ये सेंटेंस है। अगर मैंने बोला इन द मॉर्निंग, लेकिन आपको ये डाउट होगा कि कौन से समय, कब, कैसे, तो इट इज मतलब कहने का यही है कि सो इट इज नॉट अ सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है बिकॉज एक सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट चाहिए और प्रेडिकेट चाहिए जी। प्रेडिकेट चाहिए ना कि हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हो। तो इट इज नॉट अ सेंटेंस फॉर इट हैज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट। तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन इनका सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट भी नहीं होता। नो नहीं होता, ठीक है। सो सच अ ग्रुप ऑफ इज कॉल्ड अ फ्रेज
ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो ग्रुप होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फ्रेज बोलते हैं। सो अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। आपको सेंस तो पता चल रहा है कि क्या कहना चाहते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं होता वो अपने आप में, वो वाक्य अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, बिकॉज फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्योंकि फ्रेज का क्या नहीं होता? सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट भी नहीं होता। इसलिए हम फ्रेज को क्या है, इस ग्रुप को हम सेंटेंस नहीं कह सकते। अगर मैं पिछले पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को रिमूव कर दूं, इन दी मॉर्निंग, कुछ मीनिंग बना, तो इट इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस का होता है जब हम किसी से कोई बात करते हैं, बातें करते हैं, तो सामने वाले को आपकी पूरी बात समझ तो आनी चाहिए कि आप किसके बारे में क्या बात कर रहे हो, ठीक है? अगर हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा? वो मीनिंगलेस होगा। डन जी। So we have done what is the phrase. Phrase क्या होता है? And the what is a clause we will discuss. The group of words. Now you need to read the sentence. He left us. He left us when the morning came. When the morning came. ठीक है? आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा और सेकंड सेंटेंस में देखा। फर्स्ट सेंटेंस में क्या था? He left us in the morning. It has no subject and it has no predicate. ना ही इसका सब्जेक्ट है, ना ही इसकी प्रेडिकेट है। मींस ना ही किसी के बारे में बात हुई और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है। डन। If you will see, he left us when the morning came. अगर आप देखो तो इसका सब्जेक्ट भी है और इसका प्रेडिकेट भी है, क्योंकि इसके साथ वर्ब है। और the morning, ठीक है? came क्या होता है? वर्ब होता है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देख लो। Here we have no subject and we have no verb. बस एक वर्ड ऑफ ग्रुप है, सिर्फ एक क्या है? वर्ड ऑफ ग्रुप है जिसका सेंस है, मीनिंग है, लेकिन कंप्लीट नहीं है। अब इसमें क्या है? He left us when the morning came. अगर आप इस सेंटेंस को हटा दो तो देखोगे the morning came हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, ठीक है? तो when the morning came is not a phrase, for it has a subject. Subject क्या है? The morning. अब predicate means जो verb आती है सामने, came of its own. इसका ये सारा जो सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है, इस ग्रुप का अपना है। इस ग्रुप को दूसरे ग्रुप पे क्या हुआ? डिपेंड नहीं होना पड़ा, ठीक है? समझ आ गई मेरी बात? इसका सब्जेक्ट भी अपना है, प्रेडिकेट भी अपना है, ठीक है? तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज क्लोज अ क्लोज। उन वर्ड्स को क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं। समझ आई? जी। He left us when the morning came. जब सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स का अपना सब्जेक्ट होता है और अपना प्रेडिकेट होता है, आप क्या बात कर रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, जब उसका सेल्फ हो, ओन हो, तो दैट इज कॉल्ड क्लोज। That is called क्लोज। Done? जी। If we want to know the difference between the phrase and the clause, अगर आपको अच्छे से समझ आया होगा तो a group of words, phrase में क्या होता है? a group of words जिसका क्या नहीं होता? ना ही सब्जेक्ट अपना होता है और ना ही क्या होता है? प्रेडिकेट। फ्रेज में ना ही अपना सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कुछ सेंस होता है, जस्ट टू कंप्लीट आवर सेंटेंस, ठीक है? यानी कि अपने आप में सेंटेंस नहीं होता है। इफ यू विल गो नेक्स्ट, क्लोज। क्लोज क्या होता है? इट हैज ऑन प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। इसका क्या होता है? इट हैज ऑन सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। It make a sense. इसका नहीं होता। That is the difference between the phrase and the clause. A group of words. एक सेंटेंस में किन वर्ड्स का यूज किया जाता है, क्या होता है, how many parts of it we need to know about clearly. Then we can make very easily sentences. Done? तो तुम क्या सोचते हो? सिर्फ एक So what is verb? A verb is a word which says something about the subject. जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है। Now we have done subject and the predicate. अब आपको पता होना चाहिए
सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाती है, ठीक है। तो हम वर्ब में क्या स्टडी करते हैं? अ वर्ब इज अ वर्ड which says something about the subject। जो हमें किसके बारे में बताता है? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट ने क्या क्रिया की, हिंदी में जिसे बोलते हैं क्रिया, कि उसने क्या होता है, क्या एक्शन किया। सो द बॉयज प्ले फुटबॉल। हाँ जी, तो सब्जेक्ट क्या है? बॉयज, और उन्होंने क्या किया की? प्ले फुटबॉल। सो इफ यू वांट टू मेक अ सेंटेंस, अगर हमें कोई भी सिंपल सा सेंटेंस बनाना है तो वी नीड सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए, ठीक है। काइंड ऑफ वर्ब कैन बी डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर। काइंड ऑफ वर्ब क्या कह रहा है कि वर्ब्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स। ये नहीं कि वर्ब एक ही तरह की होती है, ये डिफरेंट टाइप्स की भी होती है। इसके जो फंक्शंस है वो भी क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। एंड देयर स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर भी क्या है? एक दूसरे से अलग है। तो टुडे वी विल डिस्कस वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब व्हेन वी वांट टू कंप्लीट द सेंस ऑफ अ वर्ब। अगर हमें वर्ब के सेंस को कंप्लीट करना है तो हमें इसके साथ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। हमें इसके साथ क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। हियर इंट्रांजिटिव वर्ब, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट, वी डोंट नीड टू यूज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। डन। फॉर एग्जांपल ही प्लेज वेल, वो अच्छा खेलता है ना। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ही इज रीडिंग, बट व्हाट इज ही रीडिंग? अब रीडिंग क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए। अगर हमें इस रीडिंग का सेंस मतलब कंप्लीट करना है कि क्या मीनिंग चाहिए, तो he is reading a book। He is reading a book। It means transitive verb and intransitive verb। Intransitive verb we don't need to use object to give them sense। कि इसको इस वर्ब के सेंस के लिए हमें कोई हेल्पिंग मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इफ वी वांट टू क्लियर द मीनिंग ऑफ द वर्ब, अगर हमें यहाँ पे वर्ब के मीनिंग को क्लियर करना है तो वी नीड यूज टू ऑब्जेक्ट। Done. That is difference between the transitive verb and the intransitive verb. So as we have done verbs, transitive verb and intransitive verb. अब ये क्या होते हैं? A verb which requires an object. A verb which requires मतलब जरूरत, जिसे कहते हैं एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है।
verb. It to complete its sense is called transitive verb. For example, the man killed a snake. The man killed. अब आदमी ने मारा, लेकिन मन में डाउट करता है कि किसको मारा, किसको मारा. तो अगर हमें इसके सेंस को कंप्लीट करना है, ठीक है, कि सब्जेक्ट ने जो काम किया वो क्या किया, he killed a snake. So that is called transitive verb. When we need object to complete its sense, ठीक है, जब हमें verb के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है इसका सेंस कंप्लीट करने के लिए, so that is called transitive verb. Plus object. Done? Now we will do what is intransitive verb. You also need to know कि transitive verb में two objects भी हो सकते हैं. Now we are discussing about the intransitive verb. क्या है? A verb which does not require an object, जिसे किसकी जरूरत नहीं होती है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, to complete its sense, अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए, but makes a good sense, but हमें उसे पढ़ के समझ आता है कि कहने वाला क्या कहना चाहता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन शाइन्स. अब सन के नाम से सब्जेक्ट से पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं. सो वी डोंट नीड टू यूज अ object. So the sun shines. Subject plus verb. Done? As we know, a group of words, जिसे हम सेंटेंस कहते हैं, कभी कभी उसमें टू ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट कि टू ऑब्जेक्ट्स को कौन कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आपको पता है? यस सर. डायरेक्ट बाद में सम ट्रांजिटिव वर्ब take two objects after them. One of which is a thing and the other one he taught us English.
क्या कहना चाहते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या किया है ये कि कई बार इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए टू ऑब्जेक्ट्स को भी यूज करना पड़ता है, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स को। एज वी नो टू ऑब्जेक्ट्स आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम, वन ऑफ विच इज अ थिंग, या तो कोई चीज हो सकती है, ठीक है, एंड दी अदर सम पर्सन, और जो क्या सकता है कहने का मतलब है वन कैन बी लिविंग थिंग्स और वन कैन बी नॉन लिविंग थिंग्स। डन जी। ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वन क्या होगा, लिविंग होगा, दूसरा क्या होगा, नॉन लिविंग होगा। लेकिन हाउ यू विल नो कि कौन सा लिविंग है कौन सा नॉन लिविंग है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हाउ यू विल नोट इन अ सेंटेंस कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली the name of something, example rupee, English. Indirect object, the name of some person. अगर आप करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लिविंग बीइंग। For example, him, her, us. Done? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होंगे, लिविंग बीइंग्स के बारे में बात करते हैं, हिम, हर, अस। डन? और जो सेकंड डायरेक्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है, नॉन लिविंग किसी भी थिंग किसी प्लेस का नेम हो सकता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ही गेव हिम अ रुपी, हिम क्या है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है ये, इनडायरेक्ट, क्योंकि ये लिविंग थिंग्स है, ठीक है, और नॉन लिविंग क्या है, अ रुपी, सो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये पहचान होनी चाहिए कि अगर एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव कौन से हैं? ऑब्जेक्टिव टू टाइप से होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल, चेयर, पेन, किसी के बारे में, दैट हैव नो लाइफ। और द सेकंड वन, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, हिम, हर, ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल he taught us, that is indirect object and the English is direct object. Done? तो क्या कह रहे हैं कि verb, transitive verb में हम क्या कर सकते हैं, transitive verb क्या कहते हैं कि एक सेंटेंस में टू ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं, और वो टू ऑब्जेक्ट्स कौन से होंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिंपल एग्जांपल, नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, लिविंग बीइंग्स। डन?
helping verb. It is two types, primary auxiliary verbs and the modals. जिसे modal भी कह सकते हैं. So that is called helping verb. इसको क्या कहते हैं? Helping verb. Primary भी हो सकती है और modal भी हो सकते हैं. ठीक है? That are used before the main verb. As we have discussed in this starting, कि verb है three parts. जो verb है उसके main three parts होते हैं. First है helping verb, second is finite verb, and the third one is non-finite verb. So verb, auxiliary verb and the main verb, जिसे finite verb भी कहते हैं. ठीक है? But now we will discuss about the auxiliary verb. Auxiliary verb क्या होते हैं? जिसे helping verb भी कहते हैं. ठीक है? क्या कहते हैं? Helping verb are verbs that are used before the main verb. इनका जो यूज है वो किससे पहले किया जाता है? मेन वर्ब. Main verb. Main verb कौन से? Finite verb. ठीक है? Finite verb. For example, he is playing या he is reading a book. That is helping verb. मेन वर्ब. Helping verb और ये कौन सी है? मेन वर्ब. फिनाइल वर्ब. ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? इट इज यूज बिफोर दी मेन वर्ब टू शो डिफरेंट टेंस. हाँ, लेकिन वी ऑलवेज